Hi friends, welcome back to my class. Now I am present here with new subtopic of chapter number 2, numbers up to 1000. This is a part 8 of chapter number 2. Through this video, first we will learn about some objective type questions, and after this we will learn about comparison of numbers. Comparison of numbers. Okay, so let us start this objective questions. Okay, first question is tick the correct options. Tick the correct options. Question number one. Question number one is suppose that I have taken 600 plus 40 plus 6 is equal to what? 600 plus 40 plus 60 is equal to, this is question, and question is take the correct options. It means one question has 3 or 4 options. Okay, number A 664, number B 660, and number C 646. Okay, it means in this question 3 options. One question, 3 answers. So what is the correct answer? Question 640, 600 plus 40 plus 6 is equal to 600 plus 40 plus 6 किसके इक्वल है? आंसर क्या होगा? तो हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करके भी देख सकते हैं. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना मैंने बनाया था. शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? ये जो दो तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म को. एक तो हम नॉर्मल ऐड कर लेते हैं 600 प्लस 40 प्लस 6 8, ये सबको ऐड करेंगे. 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, 6. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 646. वेरी सिक्स. ऑप्शन नंबर सी 646 is correct answer. So this is answer. Okay, this is the first method. Second method, what I told, how can we write this? How can we write short form of given expanded form of number, given number? मैंने बताया था कि अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो जो जीरो दिया हुआ है उसको हटा देना. ठीक है, तो 600 में से सिर्फ 6 लिखेंगे, 40 का सिर्फ 4 लिखेंगे, और इसके आगे पीछे कोई जीरो नहीं है तो 6 लिख देंगे. आगे आंसर. ऐसे भी बताते शॉर्ट में, और नहीं तो फिर शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ऐड करके लिखते हैं ना. So now second question. Question number 2 is 999 is equal to 999 is equal to किसके बराबर है? नंबर 1 900 प्लस 90 प्लस 9. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी 900 plus 00 plus 9. Option number B. Option number C is 900 plus 0, 900 plus 9 plus 00. What is the correct answer? 999. इसको क्या पढ़ेंगे? 999. क्या पढ़ेंगे? 999 is equal to किसके बराबर है? 999 किसके बराबर है? तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द प्लेस ऑफ 9? व्हाट इज द प्लेस ऑफ दिस फर्स्ट 9 इन माय लेफ्ट हैंड साइड? 100. इट मींस 900.
What is the place of this middle line? बीच के लाइन में क्या place है? Is it means 90 and what is the place of this? What is the place of this last line with my right hand side? Once it means 9 into 1. 9 1 is 9. 900 plus 90 plus 9. This is correct answer. This is correct answer. 900 plus 90 plus 9. When we write this given number 999 in expanded form, we will write 900 plus 90 plus 9. This is correct answer. This answer is wrong. This answer is wrong. Okay. Why? 900 middle and the middle number is tens place number is 0 0. But what is the place? Tens place number is 9. So what is the place of this 9? Tens. So 9 tens are 90. 90 not here. So this is not correct answer. You can see that in option number C, 900 plus 90 plus 0 0. But you can see that the ones place number of the ones place of digit is 9. What is the place of this 9? Ones. And what is the place value of this 9? 9 1 is 9. So 9 is not here. So this is not answer. This is answer. Okay. Next question. Now after this is for example. So some more examples already had given in your textbook, so you can do the revision. Now come to the next subtopic of this chapter, comparison of numbers. How can you compare करना means तुलना करना, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर का करना मतलब तुलना करना। जैसे हम लोग क्लास में स्टूडेंट का तुलना करते हैं ना कि कौन स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है। अब दो स्टूडेंट को ले लिए, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये पढ़ाई में अच्छा है, ये पढ़ाई में उससे थोड़ा कम है। अब खेल का बात करते हैं, खेल में कंपेयर करते हैं कि कौन स्टूडेंट खेल में अच्छा है, कौन ज्यादा है खेल में, कौन अच्छा खेलता है, कौन अच्छा नहीं खेलता, मैंने कम खेलता है। खेलते सभी है लेकिन कौन अच्छा खेलता है कौन नहीं। उसी तरह नंबर में कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। व्हाट इज द सब टॉपिक? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। Comparison of numbers. So to find out the comparison of number, we put some symbol, we put some marks. Which marks? Greater than, less than और equal. ये हम लोग पुट करते हैं, ये मार्क को पुट करते हैं। Put the mark. Okay. Put the mark. Put the greater than, less than और equal. ठीक है, greater than, less than और equal. अब हम लोग करेंगे, ठीक है। अब कैसे पहले इसको सीखेंगे। दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन और इक्वल, दिस इज नॉट। ओके, अब ये मार्क्स को पुट करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। यही है हम लोग का सब टॉपिक। अब लिखेंगे क्वेश्चन, put the greater than, less than or equal, okay, for the following, okay. Now question number 1. First we will start with 2-digit numbers. Okay, first we will start with 2-digit numbers. Okay, now first question is 43 and 20. I have, you can see that, and I have drawn a circle between these two numbers. 4 3 43, 3 4 34. Which number is greater than, which number is greater, which number is greater, कौन सा नंबर बड़ा है। So we can easily find out
This is two digit number na. 43, 34. Which number is greater? 43 is greater than 34. So we put the greater than. We put this marks. We put this greater marks. Okay. 43 is greater than 34. This is simple way. अब अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है कौन बड़ा कौन छोटा तो उसका दूसरा तरीका बताओ। देखो इसी का दूसरा मेथड बताता हूँ। 43 ओके एंड 34। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक डिजिट को देखेंगे, जो भी नंबर दिया जाएगा उसका एक एक डिजिट को देखेंगे, ठीक है। और इस तरह में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं तो इसके लिए हम लोग अपना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो नंबर होता है ना हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उस नंबर से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। So you can see that in 43 what is the first number? 4. What is the okay? And in 34 in 43 what is the first number in our left hand side? 4. Now in 34 what is the first number in our left hand side? 3. So which number is greater than? कौन बड़ा है? 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? 4 बड़ा है। तो यहाँ पहले ही समझ में आ गया कि 4 जो है 3 से बड़ा है, तो ये 43 34 से बड़ा होगा। We put this greater than marks. Okay, greater than 43 is greater than 34. Okay, now next question. ये हो गया। Now next question is (67) and 60. Okay, 67 and 60. फिर अब हम फाइंड करेंगे which number is greater 67 और 60. 67 is greater than है ना 60 काउंटिंग करते हैं तो 60 पहले आता है 67 बाद में आता है ना, तो जो नंबर बाद में आएगा वो बड़ा ना होगा। अगर हमने काउंटिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 200 तक तो जो नंबर बाद में आता जाएगा वो अपने पहले के नंबर से बड़ा होगा ना, अपने पहले के नंबर से वो बड़ा होगा। अगर हम लोग रिवर्स काउंटिंग करते हैं स्टार्ट फ्रॉम 100 एंड एंड विथ 1 तब उसमें से क्या होगा, तब उसमें से जो नंबर बाद में आएगा, ठीक है, सॉरी जो नंबर पहले आएगा वो नंबर बड़ा होगा। ऐसे होता है तो ऐसे करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखेंगे 67 60। अब कंपेयर तो फिर मैंने भी बताया कि फिर से देखेंगे एक एक नंबर को लेंगे, एक एक डिजिट को लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो इस नंबर में मैंने क्या बताया लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को लेते हैं, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड नंबर से। इन 67 फर्स्ट नंबर इज 6 एंड इन 60 फर्स्ट नंबर इज आल्सो 6। तो दोनों में 6 6 से तो बता सकेंगे कौन बड़ा, नहीं बता सकेंगे ना, तो इससे क्या करेंगे यहाँ लाएंगे। अब ये दोनों 6 6 क्या है, दोनों तो इक्वल है, नहीं मालूम नहीं पता नहीं बता पा रहे कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि 6 6 दोनों में है, दोनों का पहला डिजिट क्या है 6 6 है, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर इन 67 सेकंड नंबर इज 7, सेकंड नंबर इज 6 6। ओके दोनों में 6 दिखता है, क्या होगा ये दोनों इक्वल होगा ना। इन 67 सेकंड नंबर इज 7, सेकंड नंबर इज 7 एंड इन 60 सेकंड नंबर इज व्हाट 0, सेकंड नंबर इज 0। तो now which one is greater 7 or 0? 7 is greater than 0, so 7 is greater। अब साइन किधर लगा है 7 की तरफ लगा है, तो ये 7 किस साइड में है, इस साइड में है। 67 में 7 है ना, 67 में 7 है तो कौन सा नंबर बड़ा होगा 67 is greater than 60, 67 is greater than 60। तो इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
94. Which one is greater than? Which one is greater? 49 और 94. काउंटिंग करते तो कौन सा नंबर बाद में आता है? 94 बाद में आता है ना. काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 तक, तो कौन सा नंबर बाद में आएगा? तो जो नंबर काउंटिंग में बाद में आता है वो अपने नंबर पहले वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा. तो 94 बाद में आता है ना 49 से. 94 is greater than 49. So it is so easy. This is so easy ना. 94 is greater than 49. 94 जो है 49 से बड़ा है. हम लोग ऐसे लगा 94 is greater than 49. अब जो नंबर बड़ा होगा ना, इधर की तरफ नंबर बड़ा होगा, वो इस ऐसे साइन लगाएंगे. 94 is greater than 49. दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे? 49 is less than 94. मतलब 49 जो है वो 94 से छोटा है. 94 is greater than 49. 94 49 से बड़ा है. तो दूसरे वर्ड में दूसरे सेंटेंस में क्या बोलेंगे? ये लेस देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, तो 49 इज लेस देन 94. ये सिंपल हो गया, देख कर ही बता देंगे. अब इसको कंपेयर करके एक एक डिजिट को लेंगे, कंपेयर करेंगे, इसके बाद बताएंगे कि आंसर क्या होगा. ठीक है. नाउ स्टार्ट इन 49. इन 49 दिस इज 4. इन 94 दिस इज 9. Okay, this is 9. Which number is greater? 4 or 9? Which number is greater? 9 is greater than 4. 9 is greater na? 9 is greater than 4. So we put this side. 9 is greater than 4. It means 4 is less than 9. It means 4 is less than 9. So अब देखेंगे 9 जो है वो इधर की तरफ वाला नंबर है, इधर की तरफ 94 में 9 है ना, इधर है ना. कंपेयर किए क्या होगा? 94 होगा. आंसर 94. 49 इज लेस देन 94. इसको पढ़ेंगे 49 इज लेस देन 94. दूसरे में पढ़ेंगे 94 इज ग्रेटर देन 49. ओके. These are some example of comparison of 2 digit number. Now come to the comparison of 3 digits number. 3 digits number का compare करेंगे. Okay. I have written 443 and 576. पहले इसको रीड करेंगे. इसको पढ़ेंगे 443. क्या पढ़ेंगे? 443. और इसको पढ़ेंगे 576. इसको क्या पढ़ेंगे? 576. तो हम डायरेक्ट, अगर मुझे आता है तो हम डायरेक्ट बना लेंगे. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 576 इज ग्रेटर देन 443. और वी कैन से दैट 443 less than 576. तो कौन सा साइन लगेगा? ये साइन लगेगा, ये साइन लगेगा, ये साइन लगेगा. लेस देन पहला नंबर क्या है? लेस देन छोटा है, तो हम लोग ऐसा साइन लगाएंगे. 443 लेस देन 576. मतलब अब हम थोड़ा दूसरे तरीके से बताते हैं. इधर का नंबर बड़ा रहेगा ना. अब इसको थोड़ा देर के लिए क्रोकोडाइल मान लेते हैं. क्रोकोडाइल. ठीक है, इस साइन को क्रोकोडाइल मान लेते हैं. 576 है, तो इधर का नंबर बड़ा होता है ना, ये उधर की तरफ ऐसे मुंह फाड़ता है. ऐसे मुंह फाड़े रहेगा, ऐसे उसको खाने के लिए. इधर का नंबर बड़ा रहेगा, उधर की तरफ वो नंबर ऐसे. ये इधर का नंबर देखना बड़ा है, उधर का मुंह तरफ ऐसे लगेगा. ठीक है, मुंह जो है फाड़े रहेगा, मुंह को खोले रहेगा उसको खाने के लिए, उस नंबर को, बड़े नंबर को खाने के लिए. ठीक है. अब ये तो मैंने सिंपल से बता दिया. मुझे आता है कि 576 इज ग्रेटर देन 443 और 443 लेस देन 576.
अब कंपेयर करेंगे, एक एक डिजिट कंपेयर करके कैसे फाइंड करेंगे सुनिए। In first number, in first 443, what is the first number? 4. Okay, and in 576, what is the first number? 5. Which number is greater? Which number is greater? कौन सा नंबर बड़ा है, 4 या 5? 5 बड़ा है। तभी मैंने बताया कि जिधर का नंबर बड़ा होता है उधर का नंबर इस तरह से मुंह को खोले रहता है, वैसे लगाएंगे। 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो पहले ही नंबर में हम कंपेयर, पहले ही डिजिट का कंपेयर किए ना, पहले ही डिजिट में कंपेयर किए और पता चल गया कि 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये 5 किधर की ओर है, 576 की तरफ है, तो ये किधर साइन लगा, इधर लगा, तो ये होगा आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल। Second question is, I have written two numbers 336, 347, 336, 347। अब क्या है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर छोटा है? 336, 336 इज लेस देन, लेस मतलब छोटा, ग्रेटर मतलब बड़ा। 336 इज लेस देन 347। सो कौन सा साइन लगेगा? अभी मैंने क्या बताया था, जिधर का नंबर बड़ा रहेगा उधर की नंबर उधर की तरफ ऐसा मुंह खोलेगा, उधर वाला साइन लगेगा ना। 336 इज लेस देन 347, ये डायरेक्ट आंसर हो जाता है। अब कंपेयर, एक एक डिजिट को कंपेयर करके फाइंड करेंगे कौन सा आंसर होगा, आंसर क्या होगा, कौन सा साइन लगेगा। एक एक डिजिट को कंपेयर करेंगे, ये साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन वाला, ये लेस देन वाला और इक्वल। ठीक है, अब आते हैं पहले कंपेयर करें, एक एक डिजिट को लेंगे। इन 336 फर्स्ट वी विल टेक first number in 336 first number is 3, okay, and in this 347 also first number is 3, so which number is greater, 3 or 3? Not, no greater, no less than, no, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, दोनों इक्वल है। 3 3 इक्वल नहीं मालूम चला, नहीं पता चला, फर्स्ट नंबर से पता चला कौन बड़ा है कौन छोटा, नहीं पता चला। अब सेकंड नंबर लेंगे, सेकंड नंबर लेंगे तो इन 336 middle number or second number is 3, okay, and in 347 second number is 4, second number is 4, which number is greater, which one is greater? 4, 4 is greater than 3, 4 is greater than 3, so 4 is greater than 3 मतलब 4 बड़ा है 3 से, तो कौन सा साइन लगेगा, ये साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जिधर बड़ा नंबर देखते हो उधर किस तरह से मुंह खोल के देखता है, उसको मुंह खोलने वाला साइन लगाना। ये है, इस तरह से साइन लगेगा, लगेगा ना। तो अब सेकंड नंबर से हमको पता चल गया, सेकंड नंबर से ही मिडिल नंबर जो है, ये सेकंड नंबर से पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो 4 किस नंबर में मिडिल नंबर जो है कौन सा बड़ा है, 347 वाला बड़ा है, तो कौन सा साइन होगा, ये साइन होगा। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 336 इज लेस देन 336 is less than 347, और दूसरे तरीके से कैसे पढ़ेंगे, 347 is greater than 336। अब जब दूसरे में कंपेयर हो जाएगा ना, जब जिस नंबर से कंपेयर कर लेंगे बड़ा छोटा वही आंसर हो जाएगा, फिर इसका जरूरत नहीं पड़ा, इसका जरूरत इस नंबर को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अब आते हैं कुछ और एग्जांपल।
I have written 875 and I have written 873. Which one is greater? कौन सा नंबर बड़ा है मुझे पता है. 875 is greater than 875 is greater than 873. लेकिन अब एक एक डिजिट को कंपेयर करेंगे और फिर पता करेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. ठीक है, मुझे पता है. तो जिस स्टूडेंट को डायरेक्ट मालूम है आंसर वो डायरेक्ट साइन लगा सकते हैं. जो कंपेयर करेंगे, जो नहीं बता पाते, जो एबल नहीं है बताने में, वो एक एक डिजिट को कंपेयर करके देख लेंगे और आंसर देंगे. ठीक है, ये आंसर होगा 875 इज ग्रेटर देन 873. अब इसको एक एक डिजिट को कंपेयर करें. अब लेंगे इन 875 फर्स्ट नंबर इज 8. In 873 first number is also 8. So 88 what? 88 equal. दोनों में 88 है ना फर्स्ट नंबर. ये क्या होगा? ये इक्वल हो जाएगा. नहीं मालूम चला. जब इक्वल हो गए दोनों बराबर है तो कैसे पता चलेगा? दो स्टूडेंट को लेंगे, दो स्टूडेंट को हम बुलाएं, दोनों स्टूडेंट का मार्क्स एग्जाम में आया 50-50. तो कैसे पता चलेगा किसका ज्यादा है किसका कम? क्योंकि दोनों का तो इक्वल है. 50-50 दोनों ना है. वही है यहाँ. In 875 first number is 8 and in 873 first number is 8 equal. नहीं मालूम चला कौन बड़ा है कौन छोटा है. फिर सेकंड नंबर है. In second number is 7. Second number in 875 second number is 7. Now in 873 second number is also 7. यहाँ भी दोनों बराबर हो गया. दोनों बराबर है. यहाँ भी नहीं पता चल रहा है क्योंकि 7 दोनों इक्वल हो गया. यहाँ भी नहीं बता पा रहे कौन छोटा है कौन बड़ा है. अब आते हैं ये लास्ट नंबर लेंगे. इन 875 लास्ट नंबर इज 5. नाउ इन 873 लास्ट नंबर इज 3. नाउ व्हिच वन इज ग्रेटर? कौन सा नंबर बड़ा है? 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? 5 बड़ा है. 5 इज ग्रेटर देन 3. 5 इज ग्रेटर देन 3. तो किधर की ओर साइन लगाएंगे? कौन सा साइन लगेगा? 5 is greater than 3. 5 is greater than 3. इस लास्ट वाले नंबर से पता चला कि 5 is greater than 3. अब 5 किस नंबर में है? किस नंबर का लास्ट नंबर 5 है? 875 का 5 है. सो ये हो गया आंसर. 875 is greater than 873. तो इस तरह से हम लोग एक एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं. अगर डायरेक्ट आता है तो कंपेयर कर सकते हैं 2 डिजिट और 3 डिजिट का नंबर. और अगर डायरेक्ट नहीं आता तो एक एक डिजिट को लेकर हम इस तरह से कंपेयर करेंगे और आंसर बनाएंगे. ठीक है, अभी हम लोगों ने ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में पढ़ा. अब पढ़ेंगे इक्वल. मैंने लिखा 45, इधर भी लिखा 45. तो देख लो दोनों नंबर बराबर है. दोनों नंबर दोनों की तरफ जो हम लोग का नंबर है वो अगर इक्वल होगा तो इक्वल का साइन लगाएंगे. इसको क्या बोलते हैं? इक्वल साइन. क्या बोलते हैं? इक्वल. इक्वल का हिंदी क्या होता है? बराबर. ओके, बराबर होता है. तो ये आसान है. इक्वल वाला आसान है. 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, ये आसान है. 676 and 676 in both side both number are in both side both given number are equal. 676 both number are equal, so we will put equal sign. ये आसान है. 500 इक्वल, तो ये इक्वल वाला है. ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? We have learned through this video about some objective type question. Pick the correct ones. One question more than 2-3 options. And second things we have learned about comparison of number, comparison of 2-digit number, comparison of 3 digits number. Okay, students.